قدیم زمانے کی بات ہے جب بلند فصیلوں والا شہر دارالامن اپنی خوشحالی، امن اور انصاف کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس شہر پر بادشاہ فیروز الدین حکومت کرتا تھا۔ وہ شکار، عیش و عشرت اور بے مقصد سیر و تفریح کا شوقین نہیں تھا۔ اسے نہ تو قیمتی گھوڑوں کی نمائش میں دلچسپی تھی اور نہ ہی شاہی دعوتوں میں وقت ضائع کرنا پسند کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوشی اپنی رعایا کو خوش اور مطمئن دیکھنا تھی۔ بادشاہ فیروز الدین سادہ لباس پہنتا، نرم گفتگو کرتا اور رعایا کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ حکمران کا اصل حسن اس کے کردار میں ہوتا ہے، نہ کہ تاج و تخت میں۔ وہ سال کے 12 مہینے ملک کی فلاح، انصاف کے قیام اور کمزوروں کی مدد میں مصروف رہتا۔ اس کے وزیر، مشیر اور درباری بھی اس کی نیک سیرت سے متاثر تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ بادشاہ کے ہر اچھے کام میں اس کا ساتھ دیں۔ اس سلطنت میں ایک قدیم روایت چلی آ رہی تھی۔ جب موسم بہار کی پہلی ہوا چلتی تو شہر کے لوگ 7 روزہ بہاری جشن مناتے۔ یہ روایت صدیوں پرانی تھی، جو وقت کے ساتھ ایک عظیم تہوار کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ان 7 دنوں میں بازار رنگ برنگے کپڑوں سے سج جاتے، گھروں میں خوشبودار کھانے پکائے جاتے اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ہم ملنے جاتے۔ شہر کے در و دیوار خوشیوں سے گونج اٹھتے۔ بادشاہ فیروز الدین کو بھی اس تہوار کا بے صبری سے انتظار رہتا، مگر اس کی دلچسپی کھیل تماشوں میں تھی، ظلم و صفاقی میں نہیں۔ اس نے پڑوسی سلطنتوں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہاں جشن کے موقع پر قیدیوں کو درندوں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا، مگر ایسے کھیلوں سے اسے شدید نفرت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اللہ نے انسان کو سب سے افضل مخلوق بنایا ہے تو اس کی جان کو تماشا بنانا بدترین جرم ہے۔ اسی تہوار کے دوران محل کے سامنے ایک وسیع میدان میں کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے تھے۔ دوڑ، تیر اندازی، نیزہ بازی، کشتی، تلوار بازی اور رسہ کشی جیسے مقابلوں میں ملک بھر کے نوجوان شریک ہوتے۔ بادشاہ کو خاص طور پر دوڑ کے مقابلے بے حد پسند تھے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ دوڑ انسان کو طاقتور، چست اور صحت مند بناتی ہے۔ اسی شہر میں ایک غریب مگر محنتی لوہار رہتا تھا جس کا بیٹا سہیل تھا۔ سہیل غیر معمولی پھرتیلا، خوش اخلاق اور نیک دل نوجوان تھا۔ وہ ہر سال دوڑ کے مقابلے میں حصہ لیتا اور اکثر اول آتا۔ بادشاہ اب اسے پہچاننے لگا تھا۔ سہیل کا دوڑنے کا انداز ایسا ہوتا جیسے ہوا زمین کو چھوئے بغیر آگے بڑھ رہی ہو۔ اس سال بھی بہاری جشن آیا، میدان سجا، نعرے لگے اور اعلان ہوا کہ اس بار انعام میں شاہی تمغے کے ساتھ 1000 اشرفیاں بھی دی جائیں گی۔ اس اعلان نے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ ہر کوئی جیتنے کے خواب دیکھنے لگا، مگر بادشاہ کے دل میں ایک خاموش یقین تھا کہ یہ نوجوان سہیل ہی ہوگا۔ بہار کے تہوار کا تیسرا دن تھا۔ دارالامن کا عظیم میدان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دور دور سے آئے ہوئے تماشائی اپنی اپنی جگہ سنبھالے بیٹھے تھے۔ رنگین جھنڈیاں ہوا میں لہرا رہی تھیں اور نقارچی بار بار ڈھول بجا کر مقابلوں کے آغاز کا اعلان کر رہے تھے۔ بادشاہ فیروز الدین اپنی بلند مسند پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے دائیں جانب وزیر اعظم دانشمند خان کھڑا تھا اور بائیں طرف ملکہ اور شہزادی بیٹھی تھیں۔ شہزادی کو کھیلوں میں خاص دلچسپی تھی، خاص طور پر دوڑ اور تیر اندازی میں۔ اسی دوران اعلان ہوا، آج کے مقابلے میں دوڑ کے لیے سلطنت کے بہترین 10 نوجوان میدان میں اتریں گے۔ یہ سنتے ہی نوجوان کھلاڑی میدان کے ایک کنارے جمع ہونے لگے۔ ان میں سے زیادہ تر امیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے لباس قیمتی تھے، جوتے خاص طور پر بنوائے گئے تھے اور چہروں پر غرور صاف جھلک رہا تھا۔ وہ آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، مگر جب سہیل ان کے قریب آیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ کسی نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ان کے نزدیک سہیل ایک معمولی لوہار کا بیٹا تھا جو ان کے برابر کھڑا ہونے کے لائق نہ تھا۔ سہیل خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ غرور تھا اور نہ ہی حسد۔ وہ جانتا تھا کہ اصل عزت دولت سے نہیں بلکہ عمل سے ملتی ہے۔ وزیر اعظم نے آگے بڑھ کر اعلان کیا، بادشاہ سلامت کے حکم سے اس سال دوڑ کے مقابلے کے فاتح کو شاہی تمغے کے ساتھ 1000 اشرفیاں دی جائیں گی۔ یہ سنتے ہی نوجوانوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔
कुछ ने मुट्ठियों को भींचा, कुछ ने जमीन पर नजरें गाड़ दी। हर कोई खुद को फातेह समझ रहा था। दौड़ का रास्ता शहर के बाहर बनाए गए पुख्ता रास्ते पर था। ये रास्ता घूमता हुआ एक दरिया के किनारे से गुजरता और फिर वापस उसी मैदान में आकर खत्म होता था। घोड़ों पर सवार 2 मुहाफिज नौजवानों के पीछे पीछे निगरानी के लिए मुकर्रर किए गए थे। नकारा बजा। पहली ज़र्ब, सब तैयार हो गए। दूसरी ज़र्ब, जिस्म तन गए। तीसरी ज़र्ब, और सब नौजवान बिजली की तरह आगे लपके तमाशाई शोर मचाने लगे। दौड़ो दौड़ो। चंद ही लम्हों में सब नौजवान मोड़ काट कर नजरों से ओझल हो गए। मैदान में अब सिर्फ इंतजार बाकी था। बादशाह फिरोजुद्दीन ने कदरे मुस्कुराकर वजीर से कहा, दानिशमंद खान, मेरा दिल कहता है आज फिर वही नौजवान बाजी ले जाएगा। वजीर ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जिसके कदम सच्चे हों, कामयाबी उसी के पीछे चलती है। दौड़ने वाले नौजवान पूरी ताकत से पुख्ता रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। कदमों की थाप, सांसों की तेजी और जीत की ख्वाहिश ने सबको बेखबर कर रखा था। सुहेल सबसे आगे था। उसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे हवा उसके कदमों को उठाए लिए जा रही हो। दूसरे नौजवान उसे पीछे छोड़ने की कोशिश में अपनी पूरी कुव्वत लगा रहे थे। रास्ता घूमता हुआ दरिया के किनारे आ पहुंचा। पानी शफाफ था मगर बहाव तेज। दरिया के किनारे एक गरीब औरत कपड़े धो रही थी और उसका नन्हा सा बेटा पास ही खेल रहा था। अचानक फिसलन हुई और बच्चा लुढ़क कर दरिया में जा गिरा। पानी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। बच्चा डुबकियां खाने लगा। औरत की चीखें फिजा में गूंज उठीं। कोई है, मेरे बच्चे को बचाओ। ये आवाज सुहेल के कानों से टकराई। वो एक लम्हे को रुका। उसने पीछे देखा। दूसरे नौजवान पूरी तेजी से दौड़ते चले जा रहे थे। उनके चेहरों पर मुकाबला जीतने की जिद थी। किसी ने भी रुकने की कोशिश न की। सुहेल के दिल में एक शदीद कश्मकश पैदा हुई। एक तरफ 1000 अशरफियों का इनाम, इज्जत और शोहरत थी। दूसरी तरफ एक बेबस मां और डूबता हुआ बच्चा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने फैसला कर लिया। सुहेल ने अचानक दौड़ का रुख मोड़ा और तेजी से दरिया की तरफ लपका। उसने कपड़े उतारने की भी परवाह न की और छलांग लगा दी। ठंडा पानी उसके जिस्म से टकराया मगर उसने हिम्मत न हारी। वो तेजी से बच्चे की तरफ बढ़ा, उसे मजबूती से पकड़ा और बड़ी मुश्किल से किनारे तक ले आया। औरत ने रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर चेहरे पर शुक्र और सुकून था। वो सुहेल के कदमों में गिर पड़ी। बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने मेरे जिगर का टुकड़ा बचा लिया। सुहेल ने आजिज़ी से उसे उठाया और कहा, माँ, शुक्र अल्लाह का अदा करो। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इसी दौरान मुहाफिज घुड़सवार सब कुछ देख चुके थे। वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। दरिया के किनारे खड़े वो नौजवान जो मुकाबला जीतने के लिए आगे बढ़ चुके थे, अब दूर बहुत आगे निकल चुके थे। सुहेल का जिस्म पानी से भीगा हुआ था। सांस तेज थी मगर दिल मुतमईन था। वो जानता था कि उसने दौड़ हार दी है मगर इंसानियत जीत ली है। काफी देर गुजर चुकी थी। आखिरकार मैदान के उस सिरे से गर्द का बादल उठता दिखाई दिया जहां से दौड़ने वाले वापस आने वाले थे। तमाशाइयों में जोश की लहर दौड़ गई। सब अपनी नशिस्तों से आगे को झुक गए ताकि सबसे पहले आने वाले को देख सकें। सबसे आगे एक नौजवान नमूदार हुआ जिसका लिबास शोख रंग का था। उसके पीछे बाकी नौजवान एक एक करके मैदान में दाखिल होने लगे। तमाशाइयों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया मगर बादशाह फिरोजुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट न आई। उसकी नजरें एक ही चेहरा ढूंढ रही थीं। जब तमाम नौजवान मैदान में पहुंच गए और गिनती की गई तो एक नाम गायब था। बादशाह ने संजीदगी से वजीर आजम दानिशमंद खान से कहा, वो नौजवान कहाँ है जो हर साल सबसे आगे होता था? वजीर ने फौरन घुड़सवार मुहाफिजों को तलब किया। एक मुहाफिज ने आगे बढ़कर अदब से बताया, जहां पनाह, जब हम मोड़ काट कर दरिया के साथ साथ जा रहे थे तो एक औरत अपने डूबते हुए बच्चे के लिए चीख रही थी। सब नौजवानों ने उसे देखा मगर सिर्फ एक नौजवान रुका, वही जो सबसे आगे था। ये सुनते ही मैदान में खामोशी छा गई। मुहाफिज ने बात जारी रखी,
बाकी सब इस खौफ से आगे बढ़ गए कि कहीं मुकाबला हाथ से न निकल जाए। वो नौजवान दरिया में कूदा और बच्चे को बचा लाया। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने नौजवानों की तरफ देखा जो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े थे। बादशाह बुलंद आवाज में बोला, एक इंसानी जान के मुकाबले में इस दौड़ की क्या हैसियत थी? तुम सब ने अपनी जीत को इंसानियत पर तरजीह दी। फिर उसने फैसला सुनाया, ये मुकाबला मनसूख किया जाता है क्योंकि इसमें एक खिलाड़ी शामिल नहीं हो सका। कल यही मुकाबला दोबारा होगा। फातेह समझा जाने वाला नौजवान मायूसी से सर झुका गया। उसके ख्वाब पल भर में बिखर गए। बादशाह ने मजीद हुक्म दिया, पता लगाया जाए कि बच्चा महफूज है या नहीं, और वो नौजवान कहाँ है जिसने इंसानियत की मिसाल कायम की। मलका और शहजादी भी गहरी सोच में डूब गई थीं। शहजादी की आंखों में एहतराम था, एक ऐसे नौजवान के लिए जो इनाम से बड़ा काम कर गया था। उसी लम्हे मैदान के दरवाजे की तरफ से एक भीगा हुआ नौजवान आता दिखाई दिया। तमाम नजरें उस नौजवान पर जम गईं जो मैदान के दरवाजे से अंदर आ रहा था। उसके कपड़े पानी से भीगे हुए थे, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, मगर चेहरे पर अजीब सी तमानियत थी। ये सुहेल था। तमाशाइयों ने उसे पहचान लिया। पहले सरगोशियां हुईं, फिर तालियां गूंज उठीं। लोग अपनी अपनी जगहों से खड़े हो गए। सुहेल आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के करीब पहुंचा और अदब से सर झुका दिया। बादशाह फिरोजुद्दीन अपनी निशिस्त से उठा। उसने सुहेल के कंधे पर हाथ रखा और नर्म लहजे में पूछा, नौजवान, क्या वो सच है जो हमने सुना है? क्या तुमने दौड़ छोड़कर एक बच्चे की जान बचाई? सुहेल ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, हाँ, एक माँ का बच्चा दरिया में डूब रहा था, मुझसे रहा न गया। बादशाह ने सवाल किया, तुम जानते थे कि इस दौड़ का इनाम 1000 अशरफियां हैं? सुहेल ने धीरे से कहा, जी जानता था। फिर भी तुम रुके? बादशाह ने हैरत से पूछा। सुहेल ने सर उठाया। उसकी आंखों में खुलूस था। जहां पना, दौलत दोबारा मिल सकती है, मगर अगर वो बच्चा डूब जाता तो मां का दुख कभी खत्म न होता। इंसान की जान सबसे कीमती है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने बुलंद आवाज में कहा, हमें फख्र है कि हमारी सल्तनत में तुम जैसे इंसान दोस्त नौजवान मौजूद हैं। बादशाह ने फौरन अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतारा और सुहेल को पहना दिया। फिर वजीर से कहा, इस नौजवान के लिए शहर में कुशादा मकान का इंतजाम किया जाए। सुहेल घबरा गया, जहां पना, मैं इसके लायक नहीं। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, नेकी का सिला मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। फिर उसने हुक्म दिया, कल दौड़ का मुकाबला दोबारा होगा और सुहेल उसमें जरूर शरीक होगा। सुहेल ने अदब से सलाम किया और शुक्र अदा करता हुआ वापस लौट गया। उसका दिल मुतमईन था क्योंकि उसने जो पाया था वो सोने से कहीं ज्यादा कीमती था।